احبار پہلا باب۔ اور خداوند نے خیمہ اجتماع میں سے موسیٰ کو بلا کر اس سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم میں سے کوئی خداوند کے لیے چڑھاوا چڑھائے تو تم چوپایوں یعنی گائے، بیل اور بھیڑ بکری کا چڑھاوا چڑھانا۔ اگر اس کا چڑھاوا گائے بیل کی سوختنی قربانی ہو تو وہ بے عیب نر کو لا کر اسے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر چڑھائے، تاکہ وہ خود خداوند کے حضور مقبول ٹھہرے، اور وہ سوختنی قربانی کے جانور کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے، تب وہ اس کی طرف سے مقبول ہوگا، تاکہ اس کے لیے کفارہ ہو۔ اور وہ اس بچڑے کو خداوند کے حضور ذبح کرے، اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں خون کو لا کر اسے اس مذبح پر گردا گرد چھڑکیں جو خیمہ اجتماع کے دروازے پر ہے۔ تب وہ اس سوختنی قربانی کے جانور کی کھال کھینچے اور اس کے عضو کو کاٹ کر جدا جدا کرے۔ پھر ہارون کاہن کے بیٹے مذبح پر آگ رکھیں اور آگ پر لکڑیاں ترتیب سے چن دیں، اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اس کے اعضاء کو اور سر اور چربی کو ان لکڑیوں پر جو مذبح کی آگ پر ہوں گی ترتیب سے رکھ دیں، لیکن وہ اس کی آنتڑیوں اور پایوں کو پانی سے دھو لے۔ تب کاہن سب کو مذبح پر جلائے کہ وہ سوختنی قربانی یعنی خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہو۔ اور اگر اس کا چڑھاوا ریوڑ میں سے بھیڑ یا بکری کی سوختنی قربانی ہو تو وہ بے عیب نر کو لائے، اور وہ اسے مذبح کی شمالی سمت میں خداوند کے آگے ذبح کرے، اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اس کے خون کو مذبح پر گردا گرد چھڑکیں۔ پھر وہ اس کے عضو کو اور سر اور چربی کو کاٹ کر جدا جدا کرے، اور کاہن ان کو ترتیب سے ان لکڑیوں پر جو مذبح کی آگ پر ہوں گی چن دے، لیکن وہ آنتڑیوں اور پایوں کو پانی سے دھو لے۔ تب کاہن سب کو لے کر مذبح پر جلا دے۔ اور سوختنی قربانی یعنی خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے۔ اور اگر اس کا چڑھاوا خداوند کے لیے پرندوں کی سوختنی قربانی ہو تو وہ کمریوں یا کبوتر کے بچوں کا چڑھاوا چڑھائے، اور کاہن اس کو مذبح پر لا کر اس کا سر مروڑ ڈالے اور اسے مذبح پر جلا دے، اور اس کا خون مذبح کے پہلو پر گر جانے دے، اور اس کے پوٹے کو آلیش سمیت لے جا کر مذبح کی مشرقی سمت میں راکھ کی جگہ میں ڈال دے، اور وہ اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر اسے چیرے پر الگ الگ نہ کرے۔ تب کاہن اسے مذبح پر ان لکڑیوں کے اوپر رکھ کر جو آگ پر ہوں گی جلا دے۔ وہ سوختنی قربانی یعنی خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے۔ خروج دوسرا باب۔ اور اگر کوئی خداوند کے لیے نذر کی قربانی کا چڑھاوا لائے تو اپنے چڑھاوے کے لیے میدا لے، اور اس میں تیل ڈال کر اس کے اوپر لوبان رکھے، اور وہ اسے ہارون کے بیٹوں کے پاس جو کاہن ہیں لائے، اور تیل ملے ہوئے میدا میں سے اس طرح اپنی مٹھی بھر کر نکالے کہ سب لوبان اس میں آ جائے۔ تب کاہن اسے نذر کی قربانی کی یادگاری کے طور پر مذبح کے اوپر جلائے۔ یہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہوگی، اور جو کچھ اس نذر کی قربانی میں سے باقی رہ جائے وہ ہارون اور اس کے بیٹوں کا ہوگا۔ یہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں سے پاک ترین چیز ہے۔ اور جب تو تنور کا پکا ہوا نذر کی قربانی کا چڑھاوا لائے تو وہ تیل ملے ہوئے میدا کے
बेखमीरी गिरदे या तेल चोपड़ी हुई बेखमीरी चपातियां हों। और अगर तेरी नजर की कुर्बानी का चढ़ावा तवे का पका हुआ हो, तो वो तेल मिले हुए बेखमीरी मैदा का हो। उसको टुकड़े टुकड़े करके उस पर तेल डालना, और वो नजर की कुर्बानी होगी। और अगर तेरी नजर की कुर्बानी का चढ़ावा कड़ाही का तला हुआ हो, तो वो मैदा से तेल में बनाया जाए। तू इन चीजों की नजर की कुर्बानी का चढ़ावा खुदावंद के पास लाना, और काहन को दिया जाए, और वो उसे मज़बा के पास लाए। और काहन उस नजर की कुर्बानी में से उसकी यादगारी का हिस्सा उठाकर मज़बा पर जलाए। ये खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू की आतिशीन कुर्बानी होगी। और जो कुछ उस नजर की कुर्बानी में से बच रहे, वो हारून और उसके बेटों का होगा। ये खुदावंद की आतिशीन कुर्बानियों में पाक तरीन चीज है। कोई नजर की कुर्बानी जो तुम खुदावंद के हजूर चढ़ाओ, वो खमीर मिलाकर ना बनाई जाए। तुम कभी आतिशीन कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर खमीर या शहद ना जलाना। तुम इनको पहले फलों के चढ़ावे के तौर पर खुदावंद के हजूर लाना, पर राहत अंगेज खुशबू के लिए वो मज़बा पर ना चढ़ाए जाएं। और तू अपनी नजर की कुर्बानी के हर चढ़ावे को नमकीन बनाना, और अपनी किसी नजर की कुर्बानी को अपने खुदावंद के अहद के नमक बगैर न रहने देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। और अगर तू पहले फलों की नजर का चढ़ावा खुदावंद के हजूर चढ़ाए, तो अपने पहले फलों की नजर के चढ़ावे के लिए अनाज की भुनी हुई बालें, यानी हरी हरी बालों में से हाथ से मलकर निकाले हुए अनाज को चढ़ाना, और उसमें तेल डालना, और उसके ऊपर लुबान रखना, तो वो नजर की कुर्बानी होगी। और काहन उसकी यादगारी के हिस्सा को, यानी थोड़े से मलकर निकाले हुए दानों को, और थोड़े से तेल को, और सारे लुबान को जला दे। ये खुदावंद के लिए आतिशीन कुर्बानी होगी। खरूज तीसरा बाब। और अगर उसका चढ़ावा सलामती का ज़बीहा हो, और वो गाय बैल में से किसी को चढ़ाए, तो खा वो नर हो या मादा, पर जो बेऐब हो उसी को वो खुदावंद के हजूर चढ़ाए। और वो अपना हाथ अपने चढ़ावे के जानवर के सिर पर रखे, और खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर उसे ज़िबा करे, और हारून के बेटे जो काहिन हैं, उसके खून को मज़बा पर गिरदा गिर्द छिड़कें। और वो सलामती के ज़बीहा में से खुदावंद के लिए आतिशीन कुर्बानी गुजराने, यानी जिस चर्बी से आंतड़ियां ढकी रहती हैं, और वो सारी चर्बी जो आंतड़ियों पर लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और जिगर पर की झिल्ली गुर्दों समेत, इन सबों को वो जुदा करे। और हारून के बेटे उन्हें मज़बा पर सौख्तनी कुर्बानी के ऊपर जलाएं, जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग के ऊपर हैं। ये खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू की आतिशीन कुर्बानी है। और अगर उसका सलामती के ज़बीहा का चढ़ावा खुदावंद के लिए भेड़ बकरी में से हो, तो खा वो नर हो या मादा, पर जो बेऐब हो उसी को वो चढ़ाए। अगर वो बर्रा चढ़ाता हो, तो उसे खुदावंद के हजूर चढ़ाए, और अपना हाथ अपने चढ़ावे के जानवर के सिर पर रखे, और उसे खैमाए इज्तिमा के सामने ज़िबा करे, और हारून के बेटे उसके खून को मज़बा पर गिरदा गिर्द छिड़कें। और वो सलामती के ज़बीहा में से खुदावंद के लिए आतिशीन कुर्बानी गुजराने, यानी उसकी पूरी चर्बी भरी दुम को वो रीढ़ के पास से अलग करे, और जिस चर्बी से आंतड़ियां ढकी रहती हैं, और वो सारी चर्बी
जो आंतड़ियों पर लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और जिगर पर की झिल्ली गुर्दों समेत इन सबों को वो अलग करे, और काहिन इन्हें मज़बा पर जलाए। ये उस आतिशीन कुर्बानी की ग़ज़ा है जो खुदावंद को गुजरानी जाती है। और अगर वो बकरा या बकरी चढ़ाता हो तो उसे खुदावंद के हजूर चढ़ाए, और वो अपना हाथ उसके सिर पर रखे और उसे खैमाए इज्तिमा के सामने ज़िबा करे, और हारून के बेटे उसके खून को मज़बा पर गिरदागिर्द छिड़कें, और वो उसमें से अपना चढ़ावा आतिशीन कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराने, यानी जिस चर्बी से आंतड़ियां ढकी रहती हैं, और वो सब चर्बी जो आंतड़ियों पर लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और जिगर पर की झिल्ली गुर्दों समेत इन सबों को वो अलग करे, और काहिन इनको मज़बा पर जलाए। ये उस आतिशीन कुर्बानी की ग़ज़ा है जो राहत अंगेज खुशबू के लिए होती है। सारी चर्बी खुदावन की है। ये तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में नस्ल दर नस्ल एक दायमी कानून रहेगा कि तुम चर्बी या खून मुतलिक ना खाओ। अहबार चौथा बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से कह कि अगर कोई उन कामों में से जिनको खुदावंद ने मना किया है किसी काम को करे और उससे नादानिस्ता खता हो जाए, अगर काहिन ममसू ऐसी खता करे जिससे कौम मुजरिम ठहरती हो, तो वो अपनी उस खता के वास्ते जो उसने की है एक बेऐब बछड़ा खता की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराने, वो उस बछड़े को खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर खुदावंद के आगे लाए, और बछड़े के सिर पर अपना हाथ रखे और उसको खुदावंद के आगे ज़िबा करे, और वो काहिन ममसू उस बछड़े के खून में से कुछ लेकर उसे खैमाए इज्तिमा में ले जाए, और काहिन अपनी उंगली खून में डबो डबो कर और खून में से ले लेकर उसे मकदस के पर्दा के सामने 7 बार खुदावंद के आगे छिड़के, और काहिन उसी खून में से खुशबूदार बखूर जलाने की कुर्बानगाह के सींगों पर जो खैमाए इज्तिमा में है खुदावंद के आगे लगाए, और उसे और उस बछड़े के बाकी सब खून को सौख्तनी कुर्बानी के मज़बा के पाया पर जो खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर है उंडेल दे। फिर वो खता की कुर्बानी के बछड़ा की सब चर्बी को उससे अलग करे, यानी जिस चर्बी से आंतड़ियां ढकी रहती हैं, और वो सब चर्बी जो आंतड़ियों पर लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और जिगर पर की झिल्ली गुर्दों समेत इन सबों को वो वैसे ही अलग करे जैसे सलामती के ज़बीहा के बछड़े से वो अलग किए जाते हैं, और काहिन उनको सौख्तनी कुर्बानी के मज़बा पर जलाए, और उस बछड़े की खाल और उसका सब गोश्त और सर और पाए और अंतड़ियां और गोबर, यानी पूरे बछड़े को लश्करगाह के बाहर किसी साफ जगह में जहां राख पड़ती है ले जाए, और सब कुछ लकड़ियों पर रखकर आग से जलाए। वो वहीं जलाया जाए जहां राख डाली जाती है। अगर बनी इस्राएल की सारी जमात से अनजाने चूक हो जाए और ये बात जमायत की आंखों से छुपी तो हो, तो भी वो उन कामों में से जिन्हें खुदावंद ने मना किया है किसी काम को करे, मुजरिम हो गई हो, तो उस खता के जिसके वो कसूरवार हों मालूम हो जाने पर जमात एक बछड़ा खता की कुर्बानी के तौर पर चढ़ाने के लिए
खैमाए इज्तिमा के सामने लाए, और जमायत के बुजुर्ग अपने अपने हाथ खुदावंद के आगे उस बछड़ा के सिर पर रखें, और बछड़ा खुदावंद के आगे ज़िबा किया जाए, और काहिन ममसू उस बछड़े के खून में से कुछ खैमाए इज्तिमा में ले जाए, और काहिन अपनी उंगली उस खून में डबो डबोकर उसे पर्दा के सामने 7 बार खुदावंद के आगे छिड़के, और उसी खून में से मज़बा के सींगों पर जो खुदावंद के आगे खैमाए इज्तिमा में है लगाए, और बाकी सारा खून सौख्तनी कुर्बानी के मज़बा के पाया पर जो खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर है उंडेल दे, और उसकी सब चर्बी उससे अलग करके उसे मज़बा पर जलाए, और बछड़े से यही करे, यानी जो कुछ खता की कुर्बानी के बछड़े से किया था वही इस बछड़े से करे। यूं काहिन उनके लिए कफारा दे तो उन्हें मुआफी मिलेगी, और वो उस बछड़े को लश्करगाह के बाहर ले जाकर जलाए, जैसे पहले बछड़े को जलाया था। ये जमायत की खता की कुर्बानी है। और जब किसी सरदार से खता सरजद हो, और वो उन कामों में से जिन्हें खुदावंद ने मना किया है किसी काम को नादानिस्ता कर बैठे और मुजरिम हो जाए, तो जब वो खता जो उससे सरजद हुई है उसे बता दी जाए, तो वो एक बेऐब बकरा अपनी कुर्बानी के वास्ते लाए, और अपना हाथ उस बकरे के सिर पर रखे, और उसे उस जगह ज़िबा करे जहां सौख्तनी कुर्बानी के जानवर खुदावंद के आगे ज़िबा करते हैं। ये खता की कुर्बानी है। और काहिन खता की कुर्बानी का कुछ खून अपनी उंगली पर लेकर उसे सौख्तनी कुर्बानी के मज़बा के सींगों पर लगाए, और उसका बाकी सब खून सौख्तनी कुर्बानी के मज़बा के पाया पर उंडेल दे, और सलामती के ज़बीहा की चर्बी की तरह उसकी सब चर्बी मज़बा पर जलाए। यूं काहिन उसकी खता का कफारा दे तो उसे मुआफी मिलेगी। और अगर कोई आम आदमियों से नादानिस्ता खता करे, और उन कामों में से जिन्हें खुदावंद ने मना किया है किसी काम को करे, मुजरिम हो जाए, तो जब वो खता जो उसने की उसे बता दी जाए, तो वो अपनी उस खता के वास्ते जो उससे सरजद हुई है एक बेऐब बकरी लाए, और वो अपना हाथ खता की कुर्बानी के जानवर के सिर पर रखे, और खता की कुर्बानी के उस जानवर को सौख्तनी कुर्बानी की जगह पर ज़िबा करे, और काहिन उसका कुछ खून अपनी उंगली पर लेकर उसे सौख्तनी कुर्बानी के मज़बा के सींगों पर लगाए, और उसका बाकी सब खून मज़बा के पाया पर उंडेल दे, और वो उसकी सारी चर्बी को अलग करे, जैसे सलामती के ज़बीहा की चर्बी अलग की जाती है, और काहिन उसे मज़बा पर राहत अंगेज खुशबू के तौर पर खुदावंद के लिए जलाए। यूं काहिन उसके लिए कफारा दे तो उसे मुआफी मिलेगी। और अगर खता की कुर्बानी के लिए उसका चढ़ावा बर्रा हो, तो वो बेऐब मादा लाए, और अपना हाथ खता की कुर्बानी के जानवर के सिर पर रखे, और उसे खता की कुर्बानी के तौर पर उस जगह ज़िबा करे जहां सौख्तनी कुर्बानी ज़िबा करते हैं। और काहिन खता की कुर्बानी का कुछ खून अपनी उंगली पर लेकर उसे सौख्तनी कुर्बानी के मज़बा के सींगों पर लगाए, और उसका बाकी सब खून मज़बा के पाया पर उंडेल दे, और उसकी सब चर्बी को अलग करे, जैसे सलामती के ज़बीहा के बर्रा की चर्बी अलग की जाती है। और काहिन उसको मज़बा पर खुदावंद की आतिशीन कुर्बानियों के ऊपर जलाए। यूं काहिन उसके लिए उसकी खता का जो उससे हुई है कफारा दे, तो उसे मुआफी मिलेगी।